A very good morning and welcome back. In this lecture, we will discuss about Niels Bohr atomic model. Actually, instead of just giving you a few equations and theory, I would like to cover this particular topic in form of a story. The story begins with the birth of a scientist, which is Niels Bohr, who was born in year 1885 and died in 1962. Although some of the books mention the date of birth as 1884, but if you will consider 1885 to be the date of birth, you will find something interesting. I'll come back to it later, but as of now, you just focus on one thing, that Niels Bohr was living in Denmark. He was a Danish, and most of his studies he completed from Copenhagen. Fine. And in the year 1911, after completing his doctorate, he went to England in order to broaden his scientific horizons. बाकी जैसे PhD scholars डॉक्टरेट करने के बाद और साइंस को सीखने जाते हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना रदरफोर्ड के लैब में जाया जाए. Because he was perhaps fascinated by the newly discovered Rutherford model, जिसमें ये कहा गया था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर पे है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर orbiting around that positively charged nucleus without losing any energy in form of electromagnetic waves. He was fascinated by that thing. Although he knew कि केवल classical physics से इसका explanation देना is going to be really hopeless, is not going to lead him anywhere. तो 1911 में इनकी PhD कंप्लीट हो जाती है और 1913 के आसपास 11 के बाद 13 तक he was there in England with Rutherford. 1913 में कोपेनहेगन में ही नील बोर के दोस्त ने उन्हें ये सजेस्ट किया, क्यों ना आप अगर एक एटॉमिक थ्योरी को देख रहे हैं 1885 में डिस्कवर्ड जे बाल्मर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वाली बाल्मर सीरीज को देखें, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कुछ डिस्क्रीटनेस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, तो कुछ अलग अलग वेवलेंथ पे हमें ब्राइट लाइंस मिल रही थी एमिशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा. और जब ये 1885 में डिस्कवर्ड चीज नील बोर ने, जिनका जन्म 1885 में हुआ है, देखी, he said, the moment I saw the Balmer series, everything was clear to me. उन्हें सब समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एटम की तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है. He got everything to know. 1885. Okay, so just by looking at the Balmer series, he could give the most acceptable model of structure of atom till date. हालांकि heavy atoms या heavy elements के लिए this model fails, but that was an outstanding way one could have ever thought of. उनका कहना ये था, you can write down the two important salient features of Niels Bohr model. The first one is that electron in an atom orbit around the nucleus in fixed orbits. Orbit और orbit से आप ये समझें, when I'm writing orbit over here, I mean to say that they are circling, they are moving in fixed orbits only.
और ये फिक्स्ड ऑर्बिट ऐसा नहीं कि कोई भी मर्जी से कहीं भी डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रॉन को ले जाके रख दिया, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज ये कि इलेक्ट्रॉन विल मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में होता है। एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी, फिक्स मल्टीपल ऑफ एनर्जीज पैकेट्स, जैसे NH न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट के मल्टीपल्स में आपको एनर्जी पैकेट्स मिल सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, he knew that he had to use quantum physics anyways. The second is that these electrons can excite or de-excite. एक्साइट डी-एक्साइट से मतलब है ये हायर ऑर्बिटल में जा सकते हैं, यानी दूर वाली ऑर्बिट में जा सकते हैं, या पास वाली ऑर्बिट में जा सकते हैं, बाय absorbing photons. इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं that the atom will absorb or emit photons, and because of that the electron will either go to higher orbital or will come to the lower orbital, the orbital with higher energy or lower. Excuse me. Okay, so these are the two salient features of Bohr's atomic model. ठीक है, जो कि उन्होंने जे बाल्मर की सीरीज को देखकर गेस किया कि शायद कुछ ऐसा हो रहा। फाइन, रिमेंबर दैट अभी तक डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट नहीं है। डी ब्रोगली ने अपनी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाली हाइपोथेसिस 1923 में आकर दी है, लेकिन ये सब काम, ये सारे गैसेस 1913 में किए जा रहे हैं। यही वजह है कि 1913 के बाद 1922 में जब डी ब्रोगली ने अपना वर्क पब्लिश करना शुरू किया, देन सेम ईयर नील बोर्स गॉट द नोबेल प्राइज। ओके, हालांकि काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, इस कदर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि दो साइंटिस्ट, एक थे जॉन वन लो, लेट मी जस्ट सी, एक थे ऑटो स्टर्न और एक थे मैक्स वेनले। इन्होंने कहा कि इफ नील्स बोर वुड बी राइट दे वुड क्विट फिजिक्स। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया बिकॉज नील्स बोर वाज एक्चुअली राइट। आइंस्टीन का कहना था कि नील्स बोर की थ्योरी देखकर he thought as if it was a miracle, और जिस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जो कि करीब 10 से 15 साल बाद दिया, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि I felt it like a miracle and it appears to be as a miracle even today. Such a big accomplishment of a good guesswork. Okay, so even guesses are good. ये थी कहानी। अब हम आते हैं थ्योरी पर। तो these are the two important things. 1885 में जे बाल्मर अपनी सीरीज देते हैं और 1913 में उसी सीरीज को एक 1885 में जन्म लेने वाले साइंटिस्ट यूज करके मैटर की सबसे छोटी इकाई, द यूनिट ऑफ मैटर, एटम का एक स्ट्रक्चर देते हैं जो कि काफी सारी फिजिक्स एक्सप्लेन कर देता है। 1913 में मॉडल दिया जाता है, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वी विल स्टडी इट अलोंग विद द 1920s वाली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें हम वेवलेंथ को भी इंक्लूड कर लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, इस फिक्स्ड ऑर्बिट में और क्वांटमनेस में सीधा ताल्लुक है, स्ट्रेट रिलेशन, यू विल गेट टू नो दैट। सो यू नो दैट क्लासिकली अगर कहा जाए तो फॉर अ सिंपल हाइड्रोजन एटम ले, वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच इज थॉट टू बी ऑर्बिटिंग अराउंड, अदरवाइज ये कोएलिस कर जाएंगे अगर स्टेट रहेंगे तो हमें दो फोर्सेस चाहिए, सेंट्रीपिटल mv²/r और कूलोमिक फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट e²/r²। इन दोनों को बराबर करना है। अगर आप यहाँ से वेलोसिटी निकालें, सी मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपको एक बात बताई थी, लेट मी जस्ट टेक Bohr somewhere else from here so that we can use the full page now. Yeah,
थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी दैट कन्फाइनमेंट गिव राइज टू क्वांटमनेस। अगर आप किसी चीज को कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्वांटमनेस अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब वो किस कदर किस लेवल की होगी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर n। वी विल गेट टू सी दैट। तो इन दो पॉइंट्स के अलावा जो अभी हमने पढ़े नील बोर के मॉडल में, पहला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, दूसरा कि ये ऑर्बिट चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एब्जॉर्बिंग अ फोटोन और एमिटिंग अ फोटोन। तीसरी और चीज थी दैट वी विल डिस्कस आफ्टर अ व्हाइल। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये दो फोर्सेस जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और कूलमिक फोर्स है, हमने इक्वल कर दिया है। इनको इक्वल करने के बाद में मैंने कहा आपसे आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकालें। सो द वेलोसिटी इक्वेशन व्हिच यू विल गेट विल बी व्हाट, v इज इक्वल्स टू, देखिए ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी हैविंग e अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। फाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। फाइन, the equation of velocity. Now what we need to do is we will use this velocity assuming that the electron speed, this is our assumption, okay, we will see how well our assumption is. Electron speed is less than, I should say very less than c, which is speed of light. So we are not going to use any relativistic correction. m will be the rest mass of electron only, हमें कोई relativistic mass use नहीं करना है. This is our assumption और ये बाद में हम टेस्ट कर लेंगे. फिलहाल अगर आप, ये नील्स बोर ने नहीं किया था, ये हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस चीज को आसानी से समझने के लिए कर दिया है. नील्स बोर ने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स दिए थे, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं. थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे, लेकिन अगर आप डिब्रोगली हाइपोथेसिस देखें जिसमें कहा जाता है कि h upon mv is equals to the de Broglie wavelength. So we know that इस एटम में न्यूक्लियस के बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं. तो हमने ये पढ़ा है वेव पार्टिकल डुअलिटी में. अ मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेव बिकॉज इट हैज मोमेंटम एंड द रिलेशन बिटवीन दैट वेवलेंथ एंड द मोमेंटम इज गिवन बाय h upon mv. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करें, इट वुड बी व्हाट, h upon m, और v की वैल्यू अभी आपने निकाली है, इट इज व्हाट, e upon under root 4 pi epsilon naught m r. यहाँ से हम लिख सकते हैं h upon e, because this is in numerator denominator, so it can go like in the numerator and it will become 4 pi epsilon naught r upon m. See, this is m, so ये m square would go in the denominator, then you'll be left with this only. Fine. So this is the equation of our de Broglie wavelength for an orbital electron, which is in motion, 4 pi epsilon naught r upon m. Okay. Now using experiments, I'm not saying कि ये नील्स बोर ने experimentally derive किया, हम देखेंगे कि उन्होंने भी experimentally derive किया and he came out to the very exact calculations. लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अगर आप हाइड्रोजन एटम की रेडियस देखें तो r is nearly equals to 0. It is 53 angstroms, or you can write it as r is equals to 5.3 into 10 to the power minus 11 meters. Rest everything you know. h पता है, e पता है, epsilon naught permittivity of free space, mass of electron पता है, r भी पता है. So if you put everything inside, so what will be your lambda of orbital electron, h upon e, which will be equals to 4 pi epsilon naught r upon m. अगर आप यूज करें फॉर हाइड्रोजन एटम, r is equals to 5.3 10 to the power minus 11 meters. ठीक है, this is a number which I expect you to remember also. It can be asked in quizzes. तो lambda would come out to be, देखें क्या आ रहा है lambda आपका, you do calculations, 9.1 10 to the power minus 31 kgs, 5.3 10 to the power minus 11, then 4 pi into 8.85 10 to the power minus 12. फिर h upon e की वैल्यू, it should be nearly 33 into 10 raised to the power minus 11 meters. 33
into 10 raised to the power minus 11 meters. ओके, ये हुई आपकी वेवलेंथ, द एक्सेप्टेड वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आ रही है. फाइन. अब क्योंकि नील्स बोर का कहना था कि जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड ऑर्बिट है, यहां हो सकती है और किसी और फिक्स जगह हो सकती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप ऑर्बिट उठाकर रख देंगे इलेक्ट्रॉन की. अगर आप आर को ही लें, you take the same r which is what 5.3 into 10 to the power minus 11 meters, इसका circumference ले लें which is 2 pi r. तो इस रेडियस का circumference क्या हो जाएगा, देखें क्या वैल्यू आती है आपकी. You multiply 2 into 3.14 into 5.3 into 10 to the power minus 11, what you will get is nearly 33 into 10 to the power minus 11 meters only. So it is coming out to be that if this is the nucleus and this is the orbit, then the circumference and this is the radius, let's say. So circumference hai, which is equals to 2 pi r is equals to the associated de Broglie wavelength lambda. Okay, so such a beautiful thing, direct relationship between wave particle duality for electrons which are particles, direct relationship. In fact, ये तो केवल छोटी यानी फर्स्ट ऑर्बिटल की बात है. You can write it as the higher order orbitals will be given by 2 pi rn, which will be a multiple of this wavelength, a multiple of this wavelength, integral multiple of this wavelength lambda. That is totally out of box. सोचिए, आज से करीब 110 साल पहले कोई फिजिक्स के टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़ों को ऐसे मिलाकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे रहा है. ठीक है, तो 10 साल पहले 1913 में ऑलरेडी बोर ने पॉइंट में लिख दिया कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी डी ब्रोगली उसे बखूबी प्रूव करके दिखा रहे हैं अपनी थ्योरी से. So this is a very fascinating thing that the orbit of an electron in a hydrogen atom corresponds to one complete wavelength electron wave. और बाद की वेवलेंथ जो है, अब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को और एलाबोरेट करेंगे नील्स बोर के एटम के रिस्पेक्ट में ही. उन्होंने बहुत अच्छी चीजें देना शुरू कर. उन्होंने कहा दैट एक्चुअली रेडियस या सरकमफेरेंस केवल वही हो सकती है जो किसी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी. फॉर एग्जांपल, लेट मी यूज अ कॉइन and tell you how everything is happening. Just give me a moment. Yeah. So it is said that, let me use this coin and explain it to you, that either this particular circumference is equals to 2 pi r and this is equals to some lambda. Okay, this can also be equals to some 2 lambda. तो यही same circumference 2 lambda के भी equal हो सकती है. So अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये वेवलेंथ कैसे होगी. फॉर दैट आई विल हैव टू यूज अ स्ट्रिंग. ओके, ये एक स्ट्रेट वायर है. ठीक है, अगर मुझे एक वेवलेंथ बनानी है तो मैं ऐसे करके इसको मोड़ के बना सकता हूँ. दिस इज माय वन वेवलेंथ. फाइन. अब बस इस वेवलेंथ को आप एंड टू एंड जोड़ दीजिए लाइक दिस, इट विल बिकम अ सर्कल. तो वन वेवलेंथ है. ओके, अगर मुझे दो वेवलेंथ बनानी है इसी वायर में तो मैं पहले इसको हाफ में बांट लेता हूं लाइक दिस. बन गई. अब एक जगह ये वेवलेंथ हो गई, दिस इज वन वेवलेंथ लेट्स से, एंड दिस इज अनदर वेवलेंथ. ये दो वेवलेंथ हो गई. अब इन दो वेवलेंथ को हमें जोड़ना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. तो वो यहाँ इस तरीके से आ जाएगी इसी ओवर हियर. तो वेवलेंथ फिट कर सकते हैं आप
easily. You can fit 3 wavelengths also. So this is equals to 2 pi r equals to lambda. ये condition है 2 pi r equals to n lambda. तो orbits ऐसे fix कर सकते हैं. You're fixing orbits with wavelength. You can have 2 pi r equals to 3 lambda also, in which you have got a chance to fix 3 wavelength. Okay, one wavelength is here. ये पूरी एक wavelength होगी, फिर दूसरी wavelength ये रही और तीसरी wavelength ये रही. 3 wavelength भी fix कर सकते हैं. 2 pi r is equals to, this was equals to 2 lambda, this is equals to 3 lambda. So like this you can increase n and you would see कि any 2 pi rn can be written as n lambda. ठीक है? This is called as condition for orbit stability. So this is a very big thing, that only stable orbits will be those orbits which corresponds to some integral multiple of the de Broglie wavelength of the orbital electrons. Slow करके सुनिएगा जो मैंने चीज बोली. That the condition for stability is this, which says that the orbits in which the electron will be orbiting are not any type of orbit. They are only orbits which corresponds to the integral multiple n can be equals to 1, 2, 3, 4 and so on. The integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the motion of electron. जानते हैं कोई चीज मूव करती है तो उसकी de Broglie wavelength आ सकती है, निकाली जा सकती है. अभी CA दिया है आपने कुछ देर पहले. ठीक है? So this is a very big thing for condition of stability. अब क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही आपने निकाली थी, यू कैन पुट दैट. रिमेंबर अभी जो लैम्डा की इक्वेशन हमने निकाली थी, व्हाट वाज दैट? तो हम रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. सो आर लैम्डा वाज इक्वल्स टू h अपॉन e अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन n. करेक्ट? h अपॉन e 4 pi epsilon under root r upon m. This is r lambda. तो अगर आप n lambda बोले, n lambda equals to what? n lambda हो जाएगा n into h upon e under root of 4 pi epsilon naught r upon n. And I am saying that this particular thing is equals to 2 pi r. अगर n लिख दिया तो यहाँ n लिख देते हैं, ये n लिख देते हैं, corresponding to the nth orbital. So we can simply write. अब दो तीन चीजें एक साथ मिला रहे हैं, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ. The Niels Bohr only gave some postulate और theory जैसी दे दी, और de Broglie ने उसे actually prove करके दिखाया theoretically. That's a big thing. जो कि correspond करती है experimentally observed emission spectra, absorption spectra, इन सब से, और classical theory को भी satisfy करती है कि कोई radiation losses नहीं होंगे. तो अब हमारे पास फाइनल अभी तक क्या इक्वेशन आई हमने जो निकाली, दैट आई एम कंसीडरिंग 2 pi r n, which is the orbital stability condition. It demands that it should be equals to nh upon e under root 4 pi epsilon naught rn upon m, mass of electron. ठीक है? Now what you have to do is you just have to square both sides. You will get 2 pi rn square is equals to n square h square upon e square, और इसमें कुछ स्क्वायर नहीं होगा, इट विल बी जस्ट 4 pi epsilon naught rn upon m. फाइन. अब ये एक rn से एक पावर कट जाएगी, आपके पास रेडियस जो कि nth रेडियस है उसकी इक्वेशन आ गई, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 2 से एक 2 बचेगा, बस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा अच्छा ये अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, सो n square h square, this is pi n 4 pi epsilon naught. Yeah, so we'll be left with, देखें, it is n square h square, n square h square. और गलती यहाँ हमने ये कर दी कि
इस साइड पूरे का स्क्वायर लेना था, केवल आर स्क्वायर थोड़ा ना आएगा, तो इट वुड हैव बिकम 4 पाई स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, एक पाई यहां से कट जाएगा, लेकिन इस जगह पाई वुड रिमेन, ये 4 से 4 कैंसिल पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन यू हैव पाई ई स्क्वायर एम, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। So you have got the equation for Rn, which is equals to n square h square upon e square epsilon naught upon pi m. Okay, this is the equation for fixed orbital radiuses. अगर आप इसको क्वांटमली देखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट एज n square multiplied by h square upon e square epsilon naught upon pi m. Okay. अब यहां पर आप n इक्वल्स टू 1 रख के देखिए, n इक्वल्स टू 1 रख के देखिए और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो इफ यू विल डू दैट, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर पाई m, so if you will do that what you will get is कि r1 किसकी इक्वल आएगा, यू नो, जो हमने अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, 5.3 10 टू द पावर -11 मीटर्स। ओके, तो ये प्रूफ है कि हम जो सोच रहे थे वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, वही सच था। पूरा सच नहीं, लेकिन हाइड्रोजन एटम का सत्य तो था ही। So this is what I wanted to include in Niels Bohr atomic model. अब इससे रिलेटेड कई सारी चीजें हैं। ये जो R की इक्वेशन आपने निकाली है ना, इसी को बोर्स रेडियस बोलते हैं। So if you are asked in exam की बोर्स रेडियस का फॉर्मूला निकालिए, तो you have to put it in this form. और इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन इट। देखिए h एप्सिलॉन नॉट mass of electron, charge on electron pi. So this constant is known as a naught, the first orbital radius, and people say that Rn then can be written as n square time a naught, where a naught is fixed 5.3 10 to the power -11 या 0.53 angstroms. So this is the relationship for Bohr's radius जो कि हमने derive की। हो सकता है एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए, तो यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस ओनली। पहला स्टेप क्या था, वी कंसीडर्ड दैट फॉर स्टेबिलिटी द टू फोर्सेस, द सेंट्रीपिटल एंड द कूलोमिक फोर्सेस शुड बी इक्वल। वहां से वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली, वेलोसिटी की इक्वेशन को पुट कर दिया किसमें, वी पुट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वहां से लैम्डा निकाल दिया, और लैम्डा निकालने के बाद एक आइडिया पता चला कि दिस लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो फिर यहां से बोर्ड्स ने जो कहा था कि जो डिफरेंट रेडियसेस होंगी वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होंगी, तो हमने कहा कि चलो एन लैम्डा की इक्वल मान लेते हैं। एन लैम्डा से इक्वल करके जब आगे बढ़े यूजिंग दिस ऑल अजम्पशंस, सो वी गॉट एन इक्वेशन फॉर बोर्स रेडियस, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में ए नॉट इंटू एन स्क्वायर पे भी जानते हैं। फाइन। अब यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली, व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी हैव टू क्वांटाइज द एनर्जी so that we can explain the concept of energy spectra. जो लाइंस मिल रही थी, रिमेंबर आपसे कहा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की लाइंस पर्टिकुलर, उसका भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यही थियरी बोर का ही मॉडल दे देगा इजीली, बट दैट वी विल डू in the next part of the lecture. Thank you so much all of you.